نیٹفلکس کے بزنس کی مثال شاید آپ کو ڈھونڈنے پر بھی نہ ملے۔ جس وقت نیٹفلکس نے اپنا بزنس شروع کیا اس وقت ان کے کمپٹیٹر بلاک بسٹر کے پاس 60,000 امپلائیز اور پوری دنیا میں 9,000 سے زیادہ اسٹورز تھے، جبکہ سیلز کی بات کی جائے تو سالانہ $600 کروڑ وہ کچھ نہ کر کے بھی بنا لیتے تھے۔ دوسری طرف نیٹفلکس کے پاس اتنے پیسے بھی نہیں تھے کہ وہ اپنے آفس میں نیا صوفہ خرید کر ڈال سکیں۔ اس سچویشن میں تنگ آ کر نیٹفلکس نے اپنی کمپنی بلاک بسٹر کو بیچنا چاہی، لیکن آگے سے بلاک بسٹر سی ای او کہکے لگا کر ہنسنے لگے۔ تاریخ گواہ ہے کہ جو بلاک بسٹر پہلے ان کے سامنے دیو قامت پہاڑ کی مانند کھڑا تھا، وہی بلاک بسٹر اپنے گھٹنے رگڑنے پر مجبور ہو گیا۔ صرف کچھ سالوں کے بعد نیٹفلکس نے بلاک بسٹر کا نام و نشان ہی مٹا دیا اور آج یہ 28,000 کروڑ ڈالرز کی کمپنی ہے۔ پر یہ سب آخر ممکن کیسے ہوا؟ یہ بات ہے 1997 کی، جب انٹرنیٹ بزنس پر رجحان بڑھ رہا تھا۔ جیف بیزوس امیزون کے ذریعے انٹرنیٹ پر بکس سیل کرتے تھے اور ان کو اچھی خاصی ترقی مل رہی تھی۔ مارک رینڈولف بھی کوئی انٹرنیٹ بزنس ہی اسٹارٹ کرنا چاہتے تھے، لیکن مسئلہ یہ تھا کہ کون سا بزنس اسٹارٹ کیا جائے۔ کئی مہینوں تک مارک جہاں بھی جاتے اپنے ساتھ ہمیشہ ایک نوٹ بک رکھتے جس میں وہ نئے نئے بزنس آئیڈیاز لکھتے اور پھر وہ آئیڈیاز اپنے دوست ریڈ ہیسٹنگز کے ساتھ شیئر کرتے۔ انٹرنیٹ پر پیٹ فوڈ سے لے کر بیس بال بیٹس بیچنے تک مارک کے پاس ان گنت آئیڈیاز موجود تھے، لیکن ریڈ ہیسٹنگز کو ان میں سے ایک بھی آئیڈیا پسند نہیں آیا۔ ریڈ چاہتے تھے کہ وہ انٹرنیٹ پر کوئی ایسا بزنس شروع کریں جس کے لیے کسٹمر ان کو ایک بار ڈھونڈنا پڑے اور پھر وہی کسٹمر بار بار ان کو کما کر دے۔ کئی مہینوں تک آئیڈیاز شیئر کرنے کا یہ سلسلہ چلتا رہا، لیکن پھر فائنلی ان دونوں کو ایک آئیڈیا سمجھ آ ہی گیا: ویڈیو ٹیپس، جو اس دور میں انٹرٹینمنٹ کا اکیلا ذریعہ تھی۔ لوگ ویکینڈز پر اپنے قریبی بلاک بسٹر اسٹور پہ جاتے، وہاں گھنٹوں تک اپنی پسند کی مووی سلیکٹ کرنے کے بعد اس کو رینٹ پہ لے جاتے تھے، اور اگر ویڈیو ٹیپ ٹائم پر واپس نہ کی تو اس پر فائن لگتا تھا۔ جس وقت ان کو یہ آئیڈیا آیا اس وقت ریڈ ہیسٹنگز کے اوپر $40 کا فائن تھا، جو انہوں نے بلاک بسٹر کو ویڈیو ٹیپ لیٹ واپس کرنے کی وجہ سے دینا تھا۔ ریڈ کا ماننا تھا کہ اس انڈسٹری میں چینج کی بہت سخت ضرورت ہے اور انٹرنیٹ پر موویز رینٹ پہ دینے کا آئیڈیا ضرور چلے گا، پر مسئلہ یہ تھا کہ ایک ویڈیو کیسٹ کافی بھاری تھی اور اس کو پوسٹ کرنا کافی کاسٹلی پڑ سکتا تھا، اور پوسٹیج کے دوران جو ٹیپس ٹوٹیں گی اس کا نقصان الگ۔ یہ ایک بہت بڑا مسئلہ تھا، تو اب مارک اور ریڈ کو اپنا نیا انٹرنیٹ بزنس شروع ہونے سے پہلے ہی فیل ہوتا دکھائی دینے لگا۔ کچھ ہفتوں کے بعد ایک ٹیک میگزین کے ذریعے ان کو پہلی بار DVD ٹیکنالوجی کا معلوم پڑا۔ یہ ویڈیو کیسٹ سے کافی ہلکی اور سستی تھی اور ان کو پوسٹ کرنا بھی کافی سستا پڑ سکتا تھا۔ ریڈ ہیسٹنگز کو خیال آیا کہ ویڈیو ٹیپس کے بجائے موویز کو اگر DVDs میں ڈال کر رینٹ پہ دیا جائے تو یہ زیادہ فائدے مند ہوگا، اور یہیں سے نیٹفلکس کے آئیڈیا کی شروعات ہوئی۔ ان کا بزنس ماڈل کافی سمپل تھا۔ وہ ویب سائٹ پر DVDs کی بہت بڑی کلیکشن ڈسپلے کریں گے اور جب بھی کوئی آرڈر آئے گا تو کسٹمر کے پاس 2 دنوں میں DVDs اس کے دروازے پر پہنچ جائیں گی۔ اسی انویلپ میں ایک پری پیڈ ریٹرن انویلپ بھی رکھا جائے گا جس سے کسٹمر کو DVD واپس پوسٹ کرنا بھی آسان ہو جائے گا۔ آئیڈیا تو سمپل تھا، لیکن اس کو شروع کرنے کے لیے پیسوں کی ضرورت تھی، اور یہ انویسٹمنٹ مارک اور ریڈ دونوں کے پاس نہیں تھی۔ جیسے تیسے کر کے انہوں نے ایک چھوٹا سا لو بجٹ آفس سیٹ اپ کیا جس میں سستی فولڈنگ ٹیبلز اور سیکنڈ ہینڈ فرنیچر لے کے ڈالا۔ امپلائیز کو کم سیلری پہ رکھا گیا اس وعدے کے ساتھ کہ اگر بزنس چل گیا تو ان کو بزنس میں شیئر دیا جائے گا۔ نیٹفلکس کی اس چھوٹی سی ٹیم نے پہلے چند مہینوں میں ایک ویب سائٹ بنائی اور DVDs خریدنا شروع کی۔ آخرکار مہینوں کی محنت کے بعد وہ نیٹفلکس کو پہلی بار لانچ کرنے کے لیے بالکل تیار تھے۔ لانچ سے پہلے انہوں نے نیوز آؤٹلیٹس کے ساتھ انٹرویوز لائن اپ کیے تاکہ لانچ ہوتے ہی ان کو بہت ساری میڈیا کوریج بھی مل جائے۔ 29 اگست 1997 صبح ٹھیک 9 بجے انہوں نے ویب سائٹ کو پبلک کر دیا، اور ساتھ ہی انہوں نے ایک گھنٹی بھی انسٹال کی جو ہر نئے آرڈر پر بجے گی۔ پہلا آرڈر مارک نے خود پلیس کیا اور پہلی بار گھنٹی بجنے لگی۔ 1 منٹ کے بعد گھنٹی دوبارہ بجی اور اس بار یہ ریئل کسٹمر تھا۔ نیٹفلکس ٹیم نے مختلف انٹرنیٹ فورمز پہ انجان بن کر کمنٹس پوسٹ کیے جس میں انہوں نے نیٹفلکس کی DVD بائی میل سروس کو انٹروڈیوس کروایا، جس سے اور زیادہ مووی فینس نے نیٹفلکس کا رخ کیا۔ پہلے 15 منٹوں تک گھنٹی مسلسل بجتی رہی، لیکن پھر نیٹفلکس کی ویب سائٹ کریش ہو گئی۔ اس دور میں سرورز آفس میں ہی رکھے جاتے تھے، نہ کہ پروفیشنل ہوسٹنگ سروس کے پاس۔ یہ اشارہ تھا کہ نیٹفلکس کا سرور زیادہ ٹریفک نہیں جھیل پا رہا، یعنی ان کو زیادہ سرورز لگانے تھے۔ اسی وقت لوکل اسٹور سے 8 نئے سرورز منگائے گئے اور ویب سائٹ کو ایک بار پھر سے لائیو کر دیا گیا۔
पहले दिन में नेटफ्लिक्स के पास 137 ऑर्डर्स रिसीव हुए, जो कि उनकी उम्मीद से काफी ज्यादा थे। और क्योंकि इसके बीच कई घंटों तक वेबसाइट हैवी लोड की वजह से बंद पड़ी थी, यानी असल में ऑर्डर्स इससे भी ज्यादा आने थे। उनको अपनी वेबसाइट के मसले हल करने की जरूरत थी ताकि ये बार बार क्रैश ना हो। नेटफ्लिक्स का पहला महीना काफी अच्छा गुजरा, लेकिन मार्क और रीड ने जैसा सोचा था वैसा नहीं हुआ। क्योंकि उनके पहले महीने की सेल तो $94,000 थी, लेकिन इसमें से डीवीडी रेंट पे लेने की सेल्स सिर्फ $1,000। ज्यादातर लोग डीवीडी रेंट पे नहीं ले रहे थे, बल्कि डायरेक्टली पूरी डीवीडी खरीदना चाहते थे। उन्होंने कस्टमर्स को दोनों ऑप्शंस दे रखे थे कि या तो वो $25 की डीवीडी परचेज करें या फिर $4 की रेंट पे ले लें। मार्क और रीड चाहते थे कि उनकी रेंटल सर्विस को ज्यादा लोग इस्तेमाल करें, क्योंकि इससे एक ही डीवीडी बार बार रेंट पे जाएगी और जब तक वो डैमेज नहीं होगी तब तक उनका प्रॉफिट बनता रहेगा। उनको अच्छी तरह आइडिया था कि शुरुआत में वो डीवीडी सिर्फ इस वजह से सेल कर पा रहे हैं क्योंकि मार्केट में कोई दूसरा कॉम्पिटिटर नहीं है। कुछ हफ्तों के बाद उनको अमेज़न के जेफ बेजोस की तरफ से कॉल आई। जेफ बेजोस, जो कि पहले ही ऑनलाइन बुक्स की मार्केट में अपने कदम जमाए बैठे थे, वो अब डीवीडी मार्केट को भी कैप्चर करना चाहते थे। जेफ बेजोस नेटफ्लिक्स को खरीदना चाहते थे, जिससे उनको डीवीडी बेचने का चलता चलाया बिजनेस मिल जाएगा। दूसरी तरफ मार्क और रीड भी असल में डीवीडीज रेंट पे देना चाहते थे, ना कि उसको बेचना। लिहाजा उन्होंने नेटफ्लिक्स का डीवीडी सेलिंग वाला पार्ट अमेज़न के साथ शेयर कर दिया और बदले में अमेज़न पर अगर किसी को डीवीडीज रेंट पे चाहिए होंगी तो उनको नेटफ्लिक्स पर भेज दिया जाएगा। एक तरफ से इसमें दूर का फायदा था, जबकि करीब का नुकसान, क्योंकि नेटफ्लिक्स का वो पोर्शन जो उनको कमा कर दे रहा था वो उन्होंने अमेज़न को दे दिया। लेकिन अगर वो अमेज़न को ना भी देते तो अमेज़न खुद ही अपना नया बिजनेस खड़ा कर देता, जो कि फिर नेटफ्लिक्स के डायरेक्ट कंपटीशन में आ जाता। अब मार्क और रीड ने अपना सारा फोकस डीवीडीज को रेंट करने में लगा दिया। उन्होंने प्रमोशनल कैंपेन्स स्टार्ट की, लेकिन वो बुरी तरह से नाकाम हुई। नेटफ्लिक्स ने डीवीडी प्लेयर्स बनाने वाली मशहूर कंपनीज जैसा कि तोशिबा और सोनी से कॉन्टेक्ट किया और उनसे डील क्रैक की। डील ये थी कि जो भी कस्टमर इनके डीवीडी प्लेयर्स खरीदेगा, उनको एक नेटफ्लिक्स का कूपन कोड दिया जाएगा, जिससे वो 10 फ्री डीवीडीज रेंट पे ले सकेंगे। पर यह प्रमोशन फेल इस वजह से हुई क्योंकि डीवीडी प्लेयर्स पर कूपन कोड डब्बे के अंदर नहीं बल्कि डब्बे के बाहर ही चिपका दिए गए। यानी बेशक कोई डीवीडी प्लेयर ना भी खरीदे, उनको नेटफ्लिक्स का कूपन कोड बाहर से दिख सकता था। इसके चलते शुरुआत में नेटफ्लिक्स को बहुत सारे डीवीडीज फ्री में ही देनी पड़ी और ऊपर से इन नए कस्टमर्स में से सिर्फ 5% ही नेटफ्लिक्स के रेगुलर कस्टमर बने। यानी ये काफी घाटे का सौदा रहा। ऊपर से अमेज़न के साथ जो डील हुई थी उसमें वो डीवीडी बेचने के लिए कस्टमर्स को अमेज़न पर भेज तो रहे थे, लेकिन डीवीडी रेंट पे लेने के लिए अमेज़न की तरफ से बहुत कम कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पे आ रहे थे। इसके बाद अमेरिकन पॉलिटिक्स में एक वाकया हुआ जिसको नेटफ्लिक्स पूरी तरह कैच कर सकता था, लेकिन यहाँ पर भी कुछ ऐसा हुआ जिसका नेटफ्लिक्स को बिल्कुल भी अंदाजा नहीं था। उस वक्त के अमेरिकन प्रेसिडेंट बिल क्लिंटन व्हाइट हाउस की एक इंटर्न मोनिका के साथ लव अफेयर में पड़ गए और इस कहानी का राज खुल गया। इस मामले को लेकर कोर्ट में हियरिंग्स चल रही थी, जहां बिल क्लिंटन का अफेयर साबित हो गया और बिल क्लिंटन को प्रेसिडेंटशिप से हटा दिया गया। उस वक्त पूरा अमेरिका इस कोर्ट ट्रायल की वीडियो ढूंढ रहा था। नेटफ्लिक्स ने मौके का फायदा उठाकर चौका मारना चाहा और ट्रायल की वीडियो डीवीडीज के जरिए अपनी वेबसाइट पे लगा दी। तीर ठीक निशाने पर लग चुका था और नेटफ्लिक्स को बेशुमार ऑर्डर्स मिले, लेकिन मसला ये हुआ कि जो कंपनी इस वीडियो को डीवीडी द राइट कर रही थी वही कंपनी एडल्ट मूवीज का काम भी करती थी और गलती से उन्होंने ट्रायल की वीडियो के बजाय एडल्ट मूवी डीवीडी द राइट करके नेटफ्लिक्स को भेज दी और सोने पे सुहागा नेटफ्लिक्स ने बिना चेक किए ये सारे डीवीडीज अपने कस्टमर्स को डिस्पैच कर दी। जब ये मामला खुला तो नेटफ्लिक्स ने सारे कस्टमर्स से माजरत की, लेकिन तब तक नुकसान हो चुका था। तो मोशन का जितना फायदा सोचा गया था उससे भी ज्यादा नुकसान हुआ। अभी तक नेटफ्लिक्स का डीवीडीज रेंट करने वाला आइडिया तमाम नहीं रहा था और उनकी हर एक प्रमोशनल कैंपेन बुरी तरह फेल हो रही थी। इसी लम्हे मार्क के जहन में एक आइडिया आया, एक ऐसा आइडिया जो शायद सब कुछ बदलने वाला था। जहां पर नेटफ्लिक्स बिल्कुल वही काम कर रहा था जो ब्लॉकबस्टर का था, यानी डीवीडीज रेंट पे दे। फर्क था इस सिर्फ इंटरनेट का, क्योंकि यही काम ब्लॉकबस्टर फिजिकल स्टोर्स के जरिए कर रहा था और नेटफ्लिक्स इंटरनेट के जरिए। मार्क को आइडिया आया कि क्यों ना हम सब्सक्रिप्शन सिस्टम स्टार्ट करते हैं जिसमें कस्टमर्स को मंथली फिक्स पैसे देने होंगे और उसके बदले में 4 डीवीडीज उनको दी जाएंगी। इससे होगा यह कि 4 डीवीडीज हर वक्त कस्टमर्स के पास रहेंगी और वो जब चाहें अपनी पसंद की डीवीडी लेकर पुरानी वापस कर सकेंगे।
ظاہر ہے इससे कस्टमर्स पर लेट फीस का दबाव कम हो जाएगा। खुशकिस्मती से ये आइडिया काम कर गया। पहले ही दिन जिन लोगों में ये प्रमोशन देखी उनमें से 90% लोगों ने सब्सक्राइब कर लिया। यही वो कस्टमर्स थे जिनके लिए मार्क और रीड ने इतनी मेहनत की। सब्सक्रिप्शन की वजह से नेटफ्लिक्स की कमाई तेजी से बढ़ने लगी और एक ही कस्टमर हर महीने उनको पैसे देने लगा। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर उनका सबसे बड़ा कॉम्पिटिटर 9,000 से ज्यादा फिजिकल स्टोर्स चला रहा था और उनको सिर्फ लेट फीस की मद में सालाना $800 मिलियन मिलते थे, जबकि उस वक्त नेटफ्लिक्स की टोटल सेल्स ही सिर्फ $5 मिलियन थी। ये एक बहुत बड़ा फर्क है। कहा जाता है कि नेटफ्लिक्स की कामयाबी के पीछे अगर कोई था तो वो उनका अपना कॉम्पिटिटर ब्लॉकबस्टर ही था, क्योंकि अगर ब्लॉकबस्टर चाहता तो वो आसानी से नेटफ्लिक्स को उठते साथ ही हरा देता, लेकिन ब्लॉकबस्टर की सुस्ती ही उन्हें ले डूबी। ब्लॉकबस्टर इंटरनेट बिजनेस को बहुत हल्के में ले रहा था और क्योंकि उनके अपने फिजिकल स्टोर चल रहे थे, इसी वजह से उनको छोटे इंटरनेट बिजनेस की जरूरत महसूस ही नहीं हुई। नेटफ्लिक्स के मालिकान को अच्छी तरह मालूम था कि उनका बिजनेस सिर्फ तब तक चल रहा है जब तक ब्लॉकबस्टर भी डीवीडी बाय मेल सर्विस स्टार्ट नहीं करता। लिहाजा उन्होंने प्लान बनाया कि क्यों ना हम अपना पूरा चलता चलाया बिजनेस ब्लॉकबस्टर को ही बेच दें। इससे उनको अच्छी खासी रकम भी मिल जाएगी और वो इसी बिजनेस में काम भी करते रहेंगे, जाहिर है ब्लॉकबस्टर के पेरोल पे। तो अब उन्होंने ब्लॉकबस्टर के सीईओ के साथ मीटिंग फिक्स की। पहले तो ब्लॉकबस्टर के सीईओ ने चुप करके उनकी ऑफर सुनी और फिर उनकी डिमांड तलब की। रीड हेस्टिंग्स ने झट से बोला $50 मिलियन। ये सुनते ही ब्लॉकबस्टर का सीईओ जोर जोर से हंसने लगा। मार्क और रीड को अच्छी तरह अंदाजा हो गया कि ब्लॉकबस्टर का नेटफ्लिक्स को खरीदने में कोई इंटरेस्ट नहीं है और उनको वहां से खाली हाथ उठकर जाना पड़ा। वक्त गुजरता गया और नेटफ्लिक्स की सब्सक्रिप्शंस बढ़ती चली गईं, लेकिन ब्लॉकबस्टर अपनी ही जिद पे अड़ा रहा कि इंटरनेट बिजनेस जैसी कोई चीज ज्यादा नहीं चल सकती। लेकिन फिर 2004 में पहली बार ब्लॉकबस्टर को एहसास हुआ कि आहिस्ता आहिस्ता इनके कस्टमर्स टूट कर नेटफ्लिक्स पे साइन अप कर रहे हैं, जहां उनको घर बैठे उनकी पसंद की डीवीडी मिल जाती है। इस पॉइंट पे ब्लॉकबस्टर ने अपनी खुद की डीवीडी बाय मेल सर्विस स्टार्ट की, लेकिन अब बहुत देर हो चुकी थी। नेटफ्लिक्स को अपने कस्टमर्स का बिहेवियर समझने में 7 साल लग चुके थे। उन्होंने अपनी वेबसाइट पे ऐसे एल्गोरिदम्स इंस्टॉल किए जिससे कस्टमर्स को सिर्फ वही मूवीज शो होगी जिनमें उनका इंटरेस्ट था, और जाहिर है ब्लॉकबस्टर चाह कर भी ये सब इतना जल्दी नहीं कर सकता था। 2007 में जब ब्लॉकबस्टर अपने डीवीडी बाय मेल सर्विस को प्रमोट कर रहा था, उसी वक्त नेटफ्लिक्स वीडियो ऑन डिमांड सर्विस लॉन्च करने की जस्तजू में था, जैसा कि इंटरनेट पर ही मूवीज की स्ट्रीमिंग, यानी डीवीडीज का झंझट ही नहीं, डायरेक्ट आओ मूवी देखो और कहानी खत्म। दुनिया में पहली बार कोई स्ट्रीमिंग साइट ऐसा कर रही थी। इससे नेटफ्लिक्स को अमेरिका से भी बाहर पूरी दुनिया के कस्टमर्स मिलना शुरू हुए, क्योंकि डीवीडी बाय मेल सिर्फ वो अमेरिका में ही पोस्ट कर सकते थे। दूसरी तरफ ब्लॉकबस्टर अपनी आखिरी सांसें गिन रहा था। उन्होंने हर ग्राहक में ऐसे कदम उठाना शुरू कर दिए जिससे उनका बिजनेस बहुत अफेक्ट हुआ, जैसा कि नेटफ्लिक्स की तरह लेट फीस का हटाना या फिर वीडियो कैसेट की रिवाइंड फीस भी माफ कर देना। जब कोई कस्टमर रिवाइंड किए बगैर उनको वीडियो टेप वापस करता तो ब्लॉकबस्टर दोबारा से रिवाइंड करने के अलग से पैसे लेता था। यानी ब्लॉकबस्टर इतने सालों तक कस्टमर्स को निचोड़ कर उनसे पैसे निकाल रहा था, और वहीं नेटफ्लिक्स अपना कस्टमर एक्सपीरियंस बेहतर करने में लगा था। आखिरकार और ज्यादा कस्टमर्स नेटफ्लिक्स पे साइन अप करने लगे और 2010 में ब्लॉकबस्टर का दिवालिया निकल गया और उन्होंने बैंकरप्सी के लिए फाइल कर दिया। ब्लॉकबस्टर टेक्नोलॉजी के साथ खुद को बदलने में काफी देर कर बैठा और यही कदम इसकी $1 बिलियन एम्पायर को ले डुबा। असल में ब्लॉकबस्टर ने जो किया वो ह्यूमन साइकोलॉजी का एक हिस्सा है। जब हमारा कोई बिजनेस चल रहा होता है तो हम चाहते हैं कि बस ये इसी तरह चलता रहे और खुद को बदलने से कतराते हैं, जबकि इसी दौरान कोई और आकर इसका फायदा उठाता है और मार्केट के गैप को पूरा कर देता है। ऐसा ही कुछ नोकिया मोबाइल्स और प्रोडक्ट फोटोग्राफी के साथ भी हुआ। उन्होंने भी टेक्नोलॉजी के साथ खुद में बदलाव नहीं लाया और दूसरी कंपनीज में उनको पीछे छोड़ दिया। आज नेटफ्लिक्स के 13,000 एम्प्लॉयज पूरी दुनिया में फैले हुए हैं। कंपनी की मालियत $28,000 करोड़ से भी ज्यादा है और ये सालाना करीब $1,900 करोड़ की सेल्स करते हैं। यानी जिस कीमत में पूरी नेटफ्लिक्स ब्लॉकबस्टर को ऑफर हुई थी, उससे 380 टाइम्स ज्यादा सेल्स नेटफ्लिक्स ने सिर्फ पिछले साल की है। ये है ओरेगन में मौजूद ब्लॉकबस्टर का आखिरी स्टोर, जो असल में उन 9,000 स्टोर्स में से एक हुआ करता था। कंपनी ऑपरेटेड स्टोर्स तो सारे बंद हो गए, लेकिन ये आखिरी स्टोर अभी तक रेंट पे लिबर्टीज देता है।
آج یہاں لوگ ڈیویڈیز لینے کم بلکہ ٹورسٹ اسپاٹ کے طور پہ اپنی یادیں تازہ تمیز